everyone. In today's lecture, we are going to cover about social movements and human rights. Social movement किसे कहते हैं? क्या इसका concept था in the evolution and what are its types? किस बेस पे उसको कैटेगराइज किया जाता है? आज के लेक्चर में हम ये सब कवर करने वाले हैं. So let's begin. सोशल टर्म पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया था दैट वाज इन 1848 बाय द जर्मन सोशलिस्ट लॉरेंस विंस्टोन इन हिज बुक सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट. सोशल मूवमेंट से प्रोसेस ऑफ चेंज तो होता ही है बट इट ऑल्सो गिव द डायरेक्शन टू सोशल चेंज. These movements are large scale informal grouping भी of individuals और organization होते हैं and they are concerned with certain interest जो एक specific political और social issues को resolve या उसमें कुछ changes लाने के लिए social movement organize किया जाता है. According to Anderson and Parker defines social movement as a form of dynamic pluralistic behavior which progressively develops structure through time and aims at partial or complete modification of social order. कि एक behavior जो एक collective group होता है it comes to revolve against the some changes जो socially पहले से नहीं होते but they need that changes to develop and for their betterment structure. These are some of the definitions which talks about the social movement. According to Herbert, social movement can be viewed as collective enterprises to establish a new order of life. They have their inception in the condition of unrest and drive their motive power on one hand from dissatisfaction. So these are the definitions that are defined by some of the socialists that की collectively ऑर्गेनाइज होता है एंड जो कॉमन पर्पस होता है दैट इज कि जो सोशल सॉलिडेरिटीज है सोशल चेंजेस या पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो भी चेंजेस हैं दैट टू बी टेकन अप एंड हैव टू बी कॉन्फ्लिक्ट कि अगर ये कुछ चेंजेस चाहिए तो उस वजह से ये सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है. The term social movement evolved and began to be used during the early 19th century. It was a period of social unrest. There is no precise definition of social movement, but all scholars who have studied social movement, they emphasize कि एक collective action होता है, mobilization of the people, कि कुछ social change हो, उनके जो social movement का components होता है कि वो ideology, leadership, program, organization and they are the spirit of democracy and dynamics of society. सोशल मूवमेंट अराइज किए जाते हैं बिकॉज ऑफ द गैप जो बन जाता है एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड द प्रेजेंट रियलिटी एंड देयर आर वेरियस लेवल ऑफ सोशल चेंज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल. सोशल मूवमेंट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यू एलिमेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी विच आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द सोशल ऑर्डर. दे आर ऑलवेज अनकन्वेंशनल. सो सिविल सोसाइटी इज नॉर्मली इन अ स्टेट ऑफ चांस बट सोशल स्ट्रक्चर टेंड टुवर्ड्स स्टेबिलिटी. जो सोशल मूवमेंट्स हैं they are known as reform movements क्योंकि later they are called revolutionary movements. social movements की duration uncertain होते हैं and they have in lack of institutional status but some way they have some types of movement. migratory और migration movement जो माइग्रेटरी मूवमेंट होता है दैट फोकस कि पीपल अपनी प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ सर्टेन गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ और if they have a threat and if they are like not able to satisfy or achieve their own living of life in their own place so they leave that place in order to search some another good peaceful and प्रोटेक्टिव प्लेस. तो उस मूवमेंट को कहते हैं माइग्रेटरी मूवमेंट. द ज़ियोनिस्ट मूवमेंट जो ज्यूज मूव टू इजराइल एज अ माइग्रेटरी सोशल मूवमेंट. यूटोपियन मूवमेंट दिस मूवमेंट सीक्स टू क्रिएट एन आइडियल सोशल सिस्टम और अ परफेक्ट सोसाइटी. ये इमेजिनरी पे डिपेंड होता है एंड इट हैज नो एग्जिस्टेंस इन रियलिटी. यूरोपियन सोशलिस्ट लाइक रॉबर्ट एंड फेयर कंसिडर्ड मैन एज अ बेसिकली गुड कोऑपरेटिव एंड अल्ट्रुइस्टिक. रिफॉर्म मूवमेंट, इस मूवमेंट में मॉडिफिकेशन इंक्लूड होता है. जो रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं दे आर टू मॉडिफाई सम ऑफ द पार्ट और सम ऑफ द थिंग्स दैट टू बी ऑल्टर्ड. बिना उनको फुली ट्रांसफॉर्म बगैर किए उसके अंदर कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स होते हैं जो मॉडिफाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं. जैसे कि अगेंस्ट कास्ट system, dowry and the preservation of wildlife and eco saving, these are considered a reform movement. Revolutionary movement, these
मूवमेंट इज कंसर्न्ड विद कि ये मूवमेंट बिल्कुल उसके खिलाफ या उस चीज के लिए होता है जिसको बिल्कुल ही रिप्लेस किया जा सके फ्रॉम सोसाइटी, एंड इट इज कंसर्न विद द अबॉलिशिंग द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम एंड रिप्लेसिंग इट विद अ न्यू वन। जैसे कि सिविल राइट मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट और कम्युनिस्ट मूवमेंट इन चाइना एंड सोवियत रशिया आर द एग्जाम्पल ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट दैट इट वाज कि जो एग्जिस्टिंग मूवमेंट है उसको अबॉलिश करके नया मूवमेंट लेकर आया जा सके, जिससे कि एक बेटर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस और डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पीपल और लाइफ डेवलप आउट की जा सके। रेसिस्टेंस मूवमेंट में मीन इट मूवमेंट इंक्लूड कि इट एब्सोल्युटली ब्लॉक्ड and change in society or prevent it. जैसे DMK movement that was against Hindi language, that is the rebellion movement is one such example of resistant movement in which it includes fully blockage, कि ये movement के लिए पूरा block किया जाता है। इस movement में जो elements जो objective होता है is that कि किसी प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग चीज को पूरा ब्लॉक किया जाए, मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन या उसमें ऑल्टर नहीं, इट शुड बी ब्लॉक्ड, not to be exercised, and it called prevention one. So जो कैटेगरीज डिवाइड की गई सोशल मूवमेंट की, वो पॉलिटिकल बेस, इकोनॉमिक, सोशल, इन बेस पे डिवाइड की गई कैटेगरी सोशल मूवमेंट की, कि जो सोशल मूवमेंट है वो इन चारों में से किसी भी रीजन पे हो सकते हैं, पॉलिटिकल वाइज भी हो सकते हैं, सोशल वाइज भी हो सकते हैं, एंड इकोनॉमिक वाइज भी हो सकते हैं। So on that basis, the movement has been divided into various categories. Social reform movement, Dalit or tribal or backward class, ये social reform movement था। I will explain you in the next slide कि ये movement क्या थे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का मतलब ये है कि जो सोशली सोसाइटी में प्रैक्टिस की जा रहे हैं सिस्टम या जो भी रूल्स प्रैक्टिस की जा रहे हैं उनको रिफॉर्म करना है। जैसे दलित और ट्राइबल और ओबीसी वालों के लिए बहुत ऐसे बिहेवियर और एटीट्यूड थे सोसाइटी के जो अब ऑल्टर्ड किए गए थ्रू दिस मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट, दैट इज जो लेबर मूवमेंट, इट इज कॉल्ड लेबर मूवमेंट, उनके लिए स्टार्ट किया गया। इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल मूवमेंट इसलिए हुआ बिकॉज टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मीन कि कुछ रिलीजन्स में बहुत ऐसे कल्चर होते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सोसाइटी के लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किए जाते या नहीं किए जा सकते, तो उसके लिए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किया गया, जैसे अलीगढ़ मूवमेंट और तबलीगी जमात मूवमेंट था। विमेंस मूवमेंट, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपने लेक्चर में बताया गया कि विमेंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। तो विमेंस मूवमेंट विडो रीमैरिज, अबॉलिशन ऑफ सती और फीमेल एजुकेशन के लिए स्टार्ट हुआ, तो इट इज कंसिडर्ड एज विमेंस मूवमेंट। ह्यूमन राइट मूवमेंट, दैट इज PUCL, this I will discuss in the coming slide. So let's start. Peasant movement तेलंगाना मूवमेंट से स्टार्ट हुआ कि तेलंगाना was started in 1946 to 51 and this movement was against the revolt of feudal law, rebellion against the feudal lords of the Telangana region. And the revolt started in 1946 in the Nalgonda district और ऐसे ही ये movement spread होता गया in order who were ruling the villages known as samastans. तो उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनके जो चार्जेस, उनका जो रूल, उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे, उनसे गेट रिड ऑफ होने के लिए तेलंगाना मूवमेंट को इवॉल्व हुआ, स्टार्ट हुआ। Amongst the well-known individuals at the forefront of the movement was great leader like Ravi Narayan Reddy, and these are the leaders of this movement. The rebellion and the subsequent police action led to the liberation कि हैदराबाद स्टेट को निजाम रूल से फ्री किया गया on September 1948 and after a temporary military administration the Northern was eventually merged into the Indian Union. 3rd October 2013 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि न्यू स्टेट क्रिएशन होएगा, दैट इज तेलंगाना, बाय बिफिकेटिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट विच आई डिस्कस कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में दलित, ओबीसी एंड दीज मूवमेंट कम्स क्योंकि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवमेंट्स। दलित मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1956 से एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर and this was started in order to have a self respect
फाइटिंग फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, क्योंकि दलित लोगों को अनटचेबिलिटी के कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया जाता था एंड दे वर लाइक डिस्क्रिमिनेट एट वेरी crucial manner. The concept of untouchability had connection with destiny and pollution purity, and the Dalit movement took place all over India, and each Dalit movement had a different issue agenda, but they all fought for dignity and self-respect. So Dalit movement हर स्टेट में, बहुत स्टेट में अलग अलग नाम से जाना गया, स्टार्ट हुआ. सतनामी मूवमेंट छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ, महार मूवमेंट महाराष्ट्र में, एंड इट इज़ वेरी फेमस मूवमेंट जो अगेंस्ट दलित के था कि दलित लोगों को उस रिवर उस वेल से पानी नहीं पीने दिया जाता था. तो महार मूवमेंट महाराष्ट्र में था वो, अधिधर्मा मूवमेंट पंजाब, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट केरला. दलित मूवमेंट कुड बी इग्नोर्ड इन द पास्ट, बट नाउ due to media it is not possible. This led to the change in the mindset of people and emphasizes the fighting for self dignity by Dalits and to bring about change in all aspects of life. And the good part is that कि इस movement में बहुत Brahmins भी include थे, and reservation are a result of Dalit movement. Mandal Commission से start हुआ reservation, and this was the result from the Dalit movement. ओबीसी मूवमेंट, ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, बट दलित मूवमेंट दलित से ऊपर होते हैं. दे डोंट सफर फ्रॉम अनटचेबिलिटी, दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज दलित कि अनटचेबल हैं या उनको कहीं जाने या मंदिर में या पानी नहीं पीने दिया जाएगा. उनके साथ ओबीसी वालों के साथ ऐसा नहीं होता. इन ऑर्डर टू दलित पीपल, ओबीसी मूवमेंट डिस्क्राइब एज नॉन ब्राह्मण मूवमेंट. OBC was first used in Madras and Mumbai for those who were economically backward. So MSA Rao ने डिवाइड किया था OBC को 3 कैटेगरीज में, अपर, मिडल एंड लोअर. अपर जो ऑनर होते थे, टेनेंट्स होते थे, मिडल एंड लोअर, इन कैटेगरीज में OBC डिवाइड हुए थे. एंड मंडल कमीशन इंट्रोड्यूस OBC रिजर्वेशन. एनवायरमेंटल मूवमेंट, चिपको मूवमेंट सबसे फेमस एनवायरमेंटल मूवमेंट है, एंड ये स्टार्ट किया गया था इन 1970s में, एंड नॉन वायलेंट मूवमेंट था दैट इज बेस्ड ऑन द गांधीजी पर्सपेक्टिव्स. And the name of the Chipko movement originated from the word embrace, as the villager used to hug the trees and protect them from woodcutters from cutting them. It was started at Reni village in Garhwal in Uttarakhand. उत्तराखंड के घड़वाल में रेनी विलेज से स्टार्ट हुआ. चंद्री प्रसाद भट्ट ने ये सजेस्ट किया था दैट दे शुड embrace the tree to prevent logging. और ये चीज इंस्पायर्ड हुई थी फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, जिसने रिफ्यूज कर दिया था कि विलेज के ट्रीज नहीं कट होंगे इन ऑर्डर टू बिल्ड द पैलेस ऑफ द किंग. एंड इट occurred in the Prasanna Khamkar village of Rajasthan in the 70-30 AD. During this movement, many sacrificed their life, including around 365 Bishnois, to save khejari trees. जो चिपको मूवमेंट के लीडर थे दैट वाज सुंदरलाल भगुना, and an activist who spent his whole life persuading and educating the villagers to protest against the destruction of the forest and the Himalaya mountains. And चिपको मूवमेंट की वजह से चिपको प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, and this achieved a major victory in 1980 with a 15 years ban on trees felling in the Himalaya forest of the state by the order of Mrs. Indira Gandhi. Narmada Bachao Andolan was the another environmental movement. After the independence, India's प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कॉल कि कंस्ट्रक्शन होना है डैम का नर्मदा रिवर पे टू अरेस्ट एक्सेस वाटर फ्लोइंग इनटू अरेबियन सी, क्योंकि उनको एक्सेस वाटर के फ्लोइंग को कंज्यूम करना था इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इन ऑर्डर टू सप्लाई वाटर. जहां पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज द स्टेट टू ले aid local people and development of the nation. 2 of the largest proposed dams were Sardar Sarovar and Narmada Sagar was there. और नर्मदा वाटर डिस्प्यूट में नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंक्लूड किए 30 लार्ज डैम्स, 135 मीडियम डैम्स एंड 3000 स्मॉल डैम्स इंक्लूडिंग रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम. 1985 में कंस्ट्रक्शन ऑफ नर्मदा डैम के बारे में पता चला तो मेधा पाटकर वाज द लीडर ऑफ दिस आंदोलन एंड हर कोलीग्स विजिटेड द प्रोजेक्ट साइट एंड नोटिस कि प्रोजेक्ट वर्क वाज बीइंग चेक्ड ड्यू टू एन ऑर्डर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 1987 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ इस डैम का और 1990 में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऑर्गेनाइज किया गया बाय 2000 पर्सन. 1990 में approximately 6,000 men and women began the Narmada Jan Vikas Sangharsh Yatra, marching over 100 kilometers.
फिर 1991 में बाबा आमटे and the 7-member team began कि hunger strike पे they went and the Sardar Sarovar Dam's construction began again in 1999 and was declared finished in 2006. और इस प्रोजेक्ट को इनोग्रेट करने के लिए like the Sardar Sarovar Dams was inaugurated in 2017 by PM नरेंद्र मोदी. ह्यूमन राइट मूवमेंट, जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई तो बहुत फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स मेजर जिनको हम बोलते हैं वो फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंडेड कर दिए गए थे उस दौरान. तो PUCL इमर्ज हुआ इन 1976 अंडर द लीडरशिप ऑफ J. प्रकाश नारायण. The objective of this movement was that कि uphold और promote करना है civil liberties, public union civil liberties and the democratic way of life throughout India by peaceful means. Secure किया जाए rule of law and independence judiciary हो, prison reforms हो, freedom of the press को ensure किया जाए, क्योंकि अगर press या मीडिया वाले लोग वो सारी न्यूज़ कवर नहीं करेंगे then how it will reach to every citizen of India. To make legal aid available to the poor, to secure recognition to the principle of dignity of the individual. So public union civil liberty movement का जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, इज दैट कि सिक्योर करने ह्यूमंस के राइट्स. So this was all about in this video. Thank you so much for watching it.